والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دکشن کنڑا اور اتر کنڑا ضلع کے مختلف علاقوں میں پیش آئے سڑک حادثات و جرائم کی تازہ ترین خبریں۔ حضرت ٹیپو سلطان کا تاریخی سلطان بیتری قلعہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جیل رائے حق کا ایک اسٹیشن ہے، جیل میں اللہ کی مدد اور نصرت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مولانا سید انضر شاہ قاسمی کا بیان۔ کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارامیا کے قافلے کو گزرنے کے لیے ایک ایمبولینس کو روک دیا گیا، مریض پیدل چل کر اسپتال پہنچا۔ شولاپور کے 4 مسلم نوجوانوں کی سماعت تیز رفتاری سے جاری۔ باغپت ٹرین میں عالم دین کے ساتھ مار پیٹ، 7 نامعلوم افراد کے خلاف کیس درج، لوگوں کا شدید احتجاج۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار 3 افراد کو 14 دن کے لیے پولیس کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ وارانسی میں اب اصلی صنعتوں کا بنے گا شناختی کارڈ، ویب سائٹ پر بھی تفصیلات ہوں گی اپلوڈ۔ اچھے سلوک کی وجہ سے 2003 بم دھماکوں کے ملزم ثاقب ناچن رہا، پولیس نے ذہین ترین انسان قرار دیا۔ امریکی نیوی کا فوجی طیارہ گر کر تباہ، 11 افراد ہلاک۔ 2018 میں زلزلے زیادہ آنے کا امکان ہے، سائنسدانوں کا انتباہ۔ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل بوسنیائی سرب کمانڈر کو عمر قید کی سزا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی خبر یہاں دکشن کنڑا ضلع اور اتر کنڑا ضلع میں پیش آئے جرائم و حادثات کی ہیں۔ یہاں دکشن کنڑا ضلع اور اتر کنڑا ضلع میں گزشتہ 36 گھنٹوں میں کئی جرائم اور حادثات پیش آئے ہیں، اسی کی مختلف تفصیلات یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی خبر منگلور سے ہے۔ یہاں منگلور سے بنگلور کی جانب جا رہی ایک نجی بس بنام درگامبا میں اچانک آگ حادثات پیش آنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ منگل کی رات پیش آئے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہاسن ضلع کے مضافاتی علاقے کنچت بلی کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تمام مسافروں کو محفوظ طریقے سے اتار لیا گیا تھا۔ دوسری خبر اوپنگنڈی سے ہے۔ یہاں ایک پک اپ سواری اور رکشے کے مابین پیش آئے تصادم میں ایک LKG کے درجے کے طالب علم کے جاں بحق ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ یہ حادثہ باریا نامی علاقے میں پیش آیا ہے۔ بچے کی شناخت محمد شہناز 5 سال کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ اس موقع پر بچے کی والدہ اور اس کی بہن بھی رکشے پر سوار تھی، مگر ان کو معمولی چوٹیں پہنچی ہیں۔ اسی طرح سدھاپور اور سرسی اہم شاہراہ پر ایک سڑک حادثے میں ایک طالب علم کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ ایک KSRTC بس کو اوورٹیک کرنے کے چکر میں بائک سوار سامنے سے آ رہی بس سے ٹکرا گیا اور موقع واردات پر ہی دم توڑ دیا ہے۔ مہلوک طالب علم کی شناخت ہیمنت کمار ہے، جو سدھاپور کے تحصیلدار کے ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ اسی طرح جرائم کی تفصیلات کے مطابق گزشتہ کل یہاں ہیبری کے قریب دیسی بم اسمگل کرنے کے الزام میں پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے پاس موجود 30 دیسی بم ضبط کیے تھے۔ اب اسی کی تحقیق کے بعد پولیس بم بنانے والے دیگر 2 ملزموں کو بھی حراست میں لیا ہے۔ تمام ملزمان کی شناخت ہیبری کنینا کے مقیم ناگیش نائک عمر 38، الیاڑی دیہات کا مقیم گناکر شیٹی 56 اور مڈا مکی کا مقیم لکشمن شیٹی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ دوسری رپورٹ کمبلے سے یہاں 3 نوجوانوں کی جانب سے ذہنی ہراساں کیے جانے پر ایک خاتون کے گھر چھوڑ کر نکل جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ ملزمان کی شناخت سمیر، اشرف اور مصطفیٰ کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ یہ لوگ ایک خاتون کو بذریعہ فون لگاتار ذہنی طور پر ہراساں کر رہے تھے۔ خاتون کا شہر بیرون ملک برسر روزگار ہونے کی وجہ سے خاتون نے پولیس تھانے میں ان تینوں پر بلیک میل کرنے کا الزام بھی لگایا تھا۔ پولیس نے خاتون کی شکایت پر نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تیسری خبر ملکی سے موصول ہوئی ہے۔ یہاں بس اڈے کے قریب RR ٹاورز میں مقیم ایک شخص اچانک لاپتہ ہونے کے سلسلے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ وگنیش نامی یہ شخص اپنی تجارت ٹورز اینڈ ٹریولز میں نقصان ہونے کے باعث گھر چھوڑ کر نکل جانے کی شکایت درج کرائی گئی ہے۔ آخری خبر بھٹکل تعلقے سے یہاں 2 دن قبل کارگدے نامی علاقے میں رات دے گئے کچھ اجنبی لٹیروں کی جانب سے تیز دھار ہتھیار کے زور سے گھر کو لوٹ لیے جانے کی خبر ملی ہے۔ لٹیروں نے چھت کے سجے سے گھر کے اندر داخل ہوئے اور تیز دھار ہتھیار دکھا کر گھر والوں کو دھمکایا، پھر 19,860 روپے نقد اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ لٹیروں نے گھر کے مالک صلاح الدین لونا کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ مذکورہ تمام واردات متعلقہ علاقوں کے پولیس تھانوں میں درج کر لیے گئے ہیں۔ دوسری خبر منگلور سے ہے۔ دکشن کنڑا ضلع میں کئی ساری تاریخی قلعے، عمارتیں اور یادگار مجسمے ہیں، مگر متعلقہ محکموں کی جانب سے اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہ کرنے اور لاپرواہی کی وجہ سے ایسے کئی ساری تاریخی عمارتیں اور قلعے بوسیدگی کا شکار بن جاتے ہیں۔ ایسی ایک تازہ ترین مثال یہاں شہر منگلور کے بیلور میں واقع حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قلعہ سلطان بیری قلعہ ہے، جو محکموں کی لاپرواہی کا شکار بن کر یہ آواز دے رہا ہے
कि टीपू जयंती पर लाखों रुपयों के अखराजात बर्दाश्त करने वाले यहाँ भी थोड़ा अपनी तवज्जो दें। याद रहे कि सुल्तान बेरी किला ये मरकजी हुकूमत के ज़ेर निगरानी है। ज़िला इंतज़ामिया, ज़िला महकमे सियाहत या महकमे आसार कदीमा इसकी जानिब तवज्जो नहीं करते या फिर करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से इस किले का बुरा हाल है। इस किले की भी अपनी एक तारीख है। गुरुपुर नदी के करीब दुश्मनों के जहाज़ों को रोकने के लिए यह किला तामीर किया था। यह किला छोटा होने के बावजूद फिरंगियों को रोकने के लिए पहरे के रूप में बनाया गया था। मजबूत किला था और इसकी तफसीलात यहाँ पर लगाए गए एक नोटिस बोर्ड पर भी दर्ज हैं। 1784 में गुरुपुर नदी के किनारे तामीर करदा इस किले को आसार कदीमा में उसको शामिल कर लिया गया है और 1985 कानून के तहत यह जगह आसार कदीमा के साथ साथ अहम और ज़रूरी तारीखी जगह की हैसियत दी गई है। इसे नुकसान पहुँचाने पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इस किले के बाहर एक नोटिस बोर्ड है जिसमें किले की अहमियत के सिलसिले में बताया गया है। इसके अलावा इस तारीखी किले का कोई पुरसाने हाल नहीं, गेट हमेशा खुला रहता है। कंपाउंड या हिफाजती दीवार भी मौजूद नहीं। दीवारों पर प्रेमियों की अपनी ही यादगार तहरीरें मिलेंगी। कोई यहाँ सियाहत के लिए आए तो उसको किले के सिलसिले में तफसीलात फराहम करने वाला गाइड भी नहीं। साफ सफाई के बारे में तो पूछना ही क्या, हर तरफ जंगली झाड़ियाँ आपका इस्तकबाल करेंगी और रात होती ही दिल फेंक और आवारा लोगों का यह अड्डा बन जाएगा। साल 2005 में इसे शहर के तरक्याती महकमे ने सर्वे कंट्रोल पॉइंट के हैसियत से निशानदेही की थी। यहाँ सयाहों की थोड़ी बहुत आमद है। जिले के मुजाफात से भी लोगों की आमद रफ्त वक्तन फवक्तन होती है। ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस आसार कदीमा की हिफाजत करते हुए, इसकी देखभाल करते हुए सयाहों को करीब लाने के लिए नए मंसूबे मंजर आम पर लाए। अब खबर बेंगलोर से। उलमा को जेलों में ले जाकर फिर उम्मत में भेजना, ये भी अल्लाह की शफकत में से एक शफकत है। जो हालात पेश आए वो मुकदमे का फैसला था जिसे कोई नहीं टाल सकता। अल्लाह की इसमें कोई मसलियत होती है। इन बातों का इजहार ख्याल जुबैदा मस्जिद में मुनक़िदा आयत करीमा और ख़त्म कुरान की महफिल में अवाम को खिताब करते हुए शाह मिल्लत मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी साहब ने जेल में गुजारे हुए अपने 2.25 साल की मुख्तसर रुदात बयान करते हुए किया। मौलाना ने फरमाया कि जिस तरह खबर के हालात को मुर्दा जानता है, इसी तरह जेल के बारे में कितना भी मालूमात हासिल कर ले, लेकिन जेल के हालात को कैदी ही जानता है। शाह मिल्लत ने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाकर ये कहता हूँ कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर जेल से बढ़कर कोई आजमाइश या इम्तिहान की जगह नहीं है। अब खबर बीदर से। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का काफिले को गुजरने के लिए एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया है। एम्बुलेंस एक मरीज को ले जा रही थी। मामला कर्नाटक के मंड्या जिले के नागामंगलम का है। सिद्धरामैया का काफिला वहां से गुजरना था, जिस वजह से एक साइड से रास्ते को बंद कर दिया गया। ऐसे में एम्बुलेंस को भी बैरिकेड्स के पास रोक दिया गया। मरीज के साथ एम्बुलेंस में मौजूद लोगों ने वहां खड़े पुलिस मुलाजिमीन से एम्बुलेंस को रास्ता देने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस मुलाजिमीन ने सिक्योरिटी की वजह से इसका हवाला देते हुए रास्ता देने से इनकार कर दिया। ऐसे में मरीज वहीं एम्बुलेंस से उतर गए और तकरीबन 100 मीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी वीआईपी के काफिले के लिए एम्बुलेंस को ऐसा रोका गया है। जून 2016 ईस्वी में भी सिद्धरामैया के काफिले की वजह से एक एम्बुलेंस को तकरीबन 30 मिनट खड़े रहना पड़ा था। अब खबर मुंबई से। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस और सेमी से ताल्लुक के इल्जाम में शोलापुर से गिरफ्तार 4 मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात की समाअत स्पेशल सेशन कोर्ट भोपाल में निहायत तेज रफ्तारी से जारी है और उम्मीद है कि आइंदा 2 तारीखों में ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी और नौजवानों के मुकदमात का फैसला हो जाएगा। ये तमाम मुलजिमीन फिलवक्त भोपाल के सेंट्रल जेल में कैद हैं, जहाँ रोजाना उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मुकदमे की तेज रफ्तार समाज से इन मुलजिमीन और उनके साथ इसी मुकदमे में माकूज दीगर मुलजिमीन को बड़ी राहत मिलेगी। ये इत्तला आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। इस मामले में कुल 17 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 8 का गुज़िश्ता साल यानी 2016 में 31 सितंबर को भोपाल से करीब एक गाँव में इनकाउंटर कर दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक इस मुकदमे में कुल 17 मुस्लिम नौजवान माकूज थे, जिनमें से 5 का ताल्लुक शोलापुर से था और बकिया का ताल्लुक मुल्क के दीगर मकामात से था। अब खबर बागपत से। पुलिस जयप्रकाश ने आज यहां बताया कि बागपत के चौहलदार गांव की मस्जिद के इमाम गुलजार खान अपने भतीजे समेत 3 अफराद के साथ कल देर रात दिल्ली से शामिली जाने वाली सवारी गाड़ी में सवार होकर अहेड़ा गांव आ रहे थे। ट्रेन का अहेड़ा स्टेशन पर पहुंचने से पहले जब वो उतरने के लिए ट्रेन के दरवाजे पर आए तो वहां बैठे कुछ समाज दुश्मन अनासिरों ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि मिस्टर खान की तहरीर पर कोतवाली बागपत में 6-7 नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मिस्टर खान और उनके 2 साथियों का मेडिकल भी करवा दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक आम वाकया है जिसके बाद ट्रेनों में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी गई है। पुलिस मुलजिमीन की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ख्याल रहे कि बागपत के चौहलदार गांव की मस्जिद के पेश इमाम गुलजार खान कल रात देर गए
तकरीबन 11 बजे दिल्ली से शामिली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से उधेड़ा आ रहे थे। इनका कहना है कि जैसी ट्रेन उधेड़ा स्टेशन पर पहुंची तभी कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट शुरू कर दी। मिस्टर खान के मुताबिक इन लोगों ने गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। इस वाक़े के एहतिजाज में हेड़ा के लोगों ने रेलवे स्टेशन पर मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। बाद में लोगों ने कोतवाली पहुंचकर मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। अब खबर कलकत्ता से। बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद और एक मकामी हथियार डीलर जिसे कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आज अदालत ने 14 दिन के लिए कलकत्ता पुलिस की तहवील में इन लोगों को दे दिया है। मंगल को कलकत्ता स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने कलकत्ता रेलवे स्टेशन से 3 अफराद को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोनों अफराद हथियार डीलर से मुलाकात कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर कलकत्ता पुलिस मुरलीधर शर्मा ने कहा कि आज इन तीनों को कलकत्ता सिटी स्टेशन कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब खबर वाराणसी से। काशी विद्युत परिषद असली और फर्जी सनतों की एक फहरिस्त जारी करने जा रही है और इसके लिए परिषद ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुल्क के सभी विष्णु और शिवा अखाड़ों को खत लिखकर वाबस्ता सनतों के नाम, मकाम और राबिता नंबर मांगा गया है और जारी करने के लिए परिषद की जानिब से एक वेबसाइट भी बनाई गई है। ये वेबसाइट 8 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। वेबसाइट पर सनातन धर्म की सभी सनतों और सनतों की पूरी तफसील अपलोड की जाएगी। शास्त्रीय कवानीन का हवाला देते हुए वैलिड तरीके से सनत समेत दीगर असनाद न लिखने की वार्निंग भी जारी की जाएगी। ख्याल रहे कि हालिया दिनों में मुतअद्दिद सनतों के गलत कामों में फंसने और जेल जाने के बाद अब परिषद ने कदम उठाने का फैसला किया है। राम नारायण देविद्यु का कहना है कि अगर शंकराचार्य के जरिए मुल्क में सिर्फ 4 पीठों के क़याम के बावजूद मुल्क भर में मुबैना शंकराचार्यों की भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। इस तरह की सरगर्मियों पर रोकने के लिए परिषद की जानिब से सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को मुताल्लिका सनतों की फहरिस्त बनाने और उन्हें ID कार्ड जारी करने की भी अपील की गई है। अब खबर मुंबई से। उरुसुल बिलाद में मुंबई सेंट्रल, विलय पार्ले और मलाड में 2002 और 2003 में होने वाले बम धमाकों के मुजरिम साकिब नाचिन को जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से आज जेल से रिहा कर दिया गया है। इन 3 बम धमाकों में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे। उन्हें धमाकों की साजिश रचाने के इल्जाम में 10 साल की सजा का हुक्म दिया गया था। हालांकि इस्तिगासे ने उम्र कैद की सजा का मुतालबा किया था। बताया जाता है कि जेल में कैदी नंबर 6208 C साकिब नाचिन जेल में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और फर्माबरदार कैदी समझे जाते थे। उन्हें उनके अच्छे सुलूक और बेहतरीन डिसिप्लिन के सबब 5 महीने और 13 दिन कबल ही रिहाई नसीब हुई है। अब खबर फिलिपाइन से। फिलिपाइन के समंदर में अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बेड़े का एक फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए। अल अरबिया के मुताबिक जापानी वजारत दिफा की तरफ से बताया गया है कि अमरीकी और जापानी इमदादी टीमों ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन में तैयारे के हादसे में हलाक होने वाले 8 अफराद की लाशें निकाल ली है। कबल से अमरीकी बहरिया की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया था कि अमरीकी नेवी का एक तैयारा जापान की जनूबी मशरकी समंदर इलाके वोकेनावा में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार अमले और दीगर अफराद समेत 11 अफराद हलाक हो गए। बयान में कहा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जंगी बेड़े USS रोनाल्ड रेगन की तिब्बी टीम की तरफ से लापता होने वाले दीगर अफराद के बारे में पता चला लिया जाएगा। आखिरी इत्तला तक हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी है। अब खबर वाशिंगटन से। साइंसदानों ने मुतनब्बे किया है कि सन 2018 में तबाहकुन जल्जलों में इजाफा हो सकता है और इसका ताल्लुक जमीन के गर्दिश करने की रफ्तार में कमी से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के रॉजर ब्लम और मोइटाना यूनिवर्सिटी के रेका बेंडेक ने अमेरिका की जियोलॉजिकल सोसाइटी के सालाना इजलास में पेश की। उन्होंने कहा कि जमीन के गर्दिश करने की रफ्तार में कमी के बायस अगले साल जल्जलों की तादाद में इजाफा हो सकता है। उनका कहना था कि अगरचे गर्दिश करने की रफ्तार में कमी बहुत ही कम है, यानी दिन के दौरानिया में मिली सेकेंड की तब्दीली, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर ज़ेर ज़मीन तवानाई का इखराज मुमकिन है। इन साइंसदानों का कहना था कि ज़मीन की गर्दिश और जल्जलों में काफ़ी हद तक ताल्लुक है और अगले साल मुमकिना तौर पर तबाहकुन जल्जलों में इजाफा होगा। आखिरी खबर बोस्निया से। बोस्नियाई सर्व कमांडर रिटको मॉडिच को नस्लकशी और जंगी जराइम के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उन्होंने इन जराइम का इर्तिकाब 90 की दहाई में बोस्निया की जंग के दौरान किया था। उन्होंने, जिन्हें बोस्निया का कसाई कहा जाता है, 1995 में इन फौजी दस्तों को कमांड किया था, जिन्होंने मशरक़ी बोस्निया के शहर सरबेरेंतिरा में
قتل عام کیا، جس میں 7,000 بوسنیائی مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ سراوایو شہر کے محاصرے کے دوران 10,000 سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ 74 سالہ ملاوچ کو جب سزا سنائی گئی تو وہ عدالت میں موجود نہیں تھے، انہیں ججوں پر چیخنے کی وجہ سے عدالت سے نکال دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلے تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون